हर खबर ते नज़र हर समय आवाज़ तुहाडी पंजाबी पोस्ट आवाज़ हक दी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारे दर्शक देख रहे हो पंजाबी पोस्ट तो मैं हाँ मोहन सिंह। हर वार की तरह इस बार फिर लेके आए हाँ असी पंजाबी पोस्ट विच पंजाबी विच खबरां हर दिन हर रोज़ आप जी के इलाके दीयां खबरां मोहन सिंह लैके हाजिर होया है। ਭੋਜਪੁਰੀ ਗਾਇਕ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬੰਗਲਾ ਪੱਖੋਂ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਸਾਨਸੋਲ ਦੇ ਬਹੁਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾ ਪੱਖੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ রোকে। বিরোধিতা করেনি বাংলা পক্ষ। প্রতিদিন অনেক গায়ক গায়িকা বিহার এসে নানা এলাকার গান করে, বাংলা পক্ষ প্রতিবাদ করে না। কিন্তু এখানে প্রতিবাদ করা হয়েছে কারণ পবন সিং বাঙালি নারীদের শরীর নিয়ে বিতর্কিত গান গায়। বাঙালি বিদ্বেষী সে, বাঙালি নারীদের নিয়ে সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষার্থে প্রতিবাদ করা হয়েছে। প্রেমপাল সিং ও হরেরাম সিং কি বাঙালি নারীদের শরীর নিয়ে নোংরা গান বানানোর পক্ষে? তারা বাঙালি নারীদের সম্মানের বিরুদ্ধে। এই জবাব বাংলা পক্ষ চায়। এই ঘটনার পর যাতে বিহার ইউপিতে বাঙালি আক্রান্ত না হয় তার জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছেন হিন্দি ভাষায়। ਆਸਾਨਸੋਲ ਦੱਖਣ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਰੀ ਅਗਨੀਮਿਤਰਾ ਪਾਲ ਨੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਗਾਇਕ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਪੱਖੋਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸੋਚ ਘਟੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਮਿਤਰਾ ਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। খুব আনফর্চুনেট আজকে যে ঘটনা শুনতে পেলাম যে ভারত বিখ্যাত গায়ক পবন সিংজি তাকে আসানসোলের মাটিতে একটি কালী পুজোর উদ্বোধনে এবং সেখানে গান গাওয়ার যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তৃণমূলের বিধায়ক হরেরাম সিংজি। আজকে সেই তৃণমূলের সেই পুজোতে আজকে বাধা দেওয়া হলো এবং আসতে দেওয়া হলো না একজন গায়ককে, একজন সিঙ্গারকে, একজন বিখ্যাত সিঙ্গার পবন সিংজিকে। আজকে আমরা দেখতে পেয়েছি কয়েক মাস আগে লোকসভার ইলেকশনে যখন ভারতীয় জনতা পার্টি পবন সিংজিকে লোকসভার টিকিট দিয়েছিলেন এই আসানসোল লোকসভা থেকে, তখন এই তৃণমূল, এই বাংলা পক্ষ যারা মমতা ব্যানার্জির তৃণমূলের বি টিম হিসেবে কাজ করেন, তারা এই নোংরা আঞ্চলিকতার রাজনীতি শুরু করেছিলেন। শুধু বাংলা পক্ষ নয়, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার টিমে, আপনার দলে ওই কি মেন-11-এ খেলবে বলে কেউ একজন এসেছিল না, যাকে খুব একটা দেখতে পাই না আজকাল, তিনিও খুব লম্ফঝম্প করেছিলেন এই পবন সিংকে টিকিট দেওয়া নিয়ে। আসলে আমাদের জন্য খুব খারাপ লাগে, আমরা যারা ভারতীয় জনতা পার্টি করি, আমাদের কাছে দেশ সবার আগে। আমরা সবার আগে হচ্ছে ভারতীয়। কে বাঙালি, কে বিহারি, কে ইউপি, কে গুজরাটি, কে সাউথ ইন্ডিয়ান, এগুলো নিয়ে আমাদের কিন্তু কোনো কথা মনে হয় না। তাই জন্য আজকে আমাদের খুব খারাপ লাগে যখন একজন আর্টিস্ট একটা ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যে গিয়ে গান করবে না, তাকে বাধা দেওয়া হবে। আজকে এই যারা বাধা দিয়েছে, আমরা কদিন আগে দেখলাম এই বাংলা পক্ষ শিলিগুড়িতে বিহার থেকে কিছু ছেলে তারা পরীক্ষা দিতে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গে, তাদেরকে মারধর করেছে। কি আস্পর্ধা! আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বাংলার নাম যেভাবে তলানিতে ঠেকিয়ে দিয়েছেন, এই বাংলা পক্ষ তৃণমূলের বি টিম আপনারাও ঠিক একই জিনিস করছেন। বাংলা এবং বাঙালির মান সম্মান সব মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছেন। আমি হরেরাম সিংজিকে বলবো, হরেরাম সিংজি আপনি এফআইআর করেছেন? পুলিশকেই বাংলা পক্ষর এগেনস্টে এফআইআর করেছেন কি? করেননি নিশ্চয়ই, করবেন কি করে? কারণ আপনার
আপনি যে দল করেন সেই দলেরই তো বি টিম, তাদেরই তো আশীর্বাদ আছে, আপনি করবেন কি করে? অত্যন্ত অন্যায় এবং লজ্জার। আজকে বাঙালি সারা পৃথিবী জুড়ে তারা তাদের কোথায় ডিরেক্টর বলুন, গায়ক বলুন, অ্যাক্টর বলুন, সব জায়গায় বাঙালি রয়েছে। এই নোংরা রাজনীতি না ভারতীয় জনতা পার্টি, না আমাদের সিনিয়র নেতৃত্ব, না আমাদের প্রধানমন্ত্রী কোনোদিন আমাদের শিখিয়েছে। সবার আগে দেশ, সবার আগে আমরা ভারতীয়। ਆਯੋਜਕਕਰਤਾ ਜਮੁੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ सांस्कृतिक प्रोग्राम ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤਿਤ नहीं बल्कि सुरक्षा कारणों करके है। आप सारे न्यूज़ चैनल के लिए यहाँ पे आने के लिए मैं प्रेमपाल सिंह, तृणमूल युवा कांग्रेस के जिला सचिव, साथ में जमुड़िया विधायक के प्रतिनिधि माननीय श्री हरेराम सिंह जी का आज ये आधिकारिक घोषणा है, चूँकि हम लोग को करना पड़ता है। ये आधिकारिक घोषणा है आपका हमारे जो पिताजी एमएलए साहब जिस पूजा कमेटी के सभापति हैं, बहुला सार्वजनिक काली पूजा, जो हर साल की तरह इस साल भी हो रही है। इसमें हर वर्ष कोई ना कोई हम लोग कलाकार लेके आते थे, वो चाहे बंगला स्टार हो, चाहे भोजपुरी स्टार हो, चाहे हिंदी स्टार हो, जिसमें हम लोग सक्षम होते थे हम लोग लेकर आते थे और कार्यक्रम करते थे। सारे जनता लोग उसका उत्साह करते थे, आनंद उठाते थे। इस बार भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया आयोजन। इसमें हम लोगों ने बंगाल के अपने अनुष्का पात्रो हैं, सौम्यदीप भौमिक हैं और अंतरा बैंड है, बहुत नामी बैंड है, उनका कार्यक्रम था 1 तारीख 2 तारीख को। और 3 तारीख को हमारे जो भोजपुरी स्टार बोलते थे, अब तो वो बॉलीवुड के स्टार हो चुके हैं, पवन सिंह, उनका कार्यक्रम था 3 तारीख को 7 बजे, जिसको हम लोगों ने निर्धारित किया था। लेकिन किसी कारणवश, किसी सेंटिमेंट के चलते, किसी एक संगठन के चलते, अब उनके पास जिसका छत्र छाया हो हमें नहीं पता, लेकिन उनका लगातार विरोध के कारण हमने प्रशासन से भी अपील किया था इसके लिए सुरक्षा देने के लिए। प्रशासन ने बोला कि हम सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हैं, आपका कैपेसिटी ग्राउंड का थोड़ा कम है और आपका सिलेक्शन थोड़ा कम है, तो सुरक्षा में थोड़ा फेरबदल हो सकता है, हम लोग उसमें त्रुटि पूरा कर नहीं पाएंगे। इसी कारणवश हम लोग ने सब कारणों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पावर स्टार पवन सिंह, उनका कार्यक्रम 3 तारीख को हम लोग आज आधिकारिक घोषणा करते हैं कि निरस्त करते हैं। उनका कार्यक्रम बर्खास्त किया जा रहा है अगले तारीख तक। और साथ ही साथ सुरक्षा के कारण हम लोग जितना कार्यक्रम है, बंगला आर्टिस्ट का हो, चाहे बैंड का हो, चाहे किसी भी सांस्कृतिक अनुष्ठान का हो, सारा को हम लोग आज बर्खास्त करते हैं। माँ की पूजा है, हम लोग श्रद्धा रखते हैं, माँ की पूजा में हम लोग पूजा करेंगे, पंडाल भी बनेगी, लाइट भी लगेगी और मेला भी लगेगा, सारे लोग उत्साह करेंगे और इसका हम लोग भरपूर आनंद उठाएंगे। और चूँकि किसी कारणवश हम लोग को कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ रहा है, तो ये 3 ओजन का कार्यक्रम आज से निरस्त किया जाता है, इसके आधिकारिक घोषणा है। जो पक्ष है जो इस तरह के बार बार आप लोगों को दिक्कत दे रहा है कि नहीं होना चाहिए कार्यक्रम, क्या नाम है उनका? देखिए, संगठन बहुत तरीके के हैं, बहुत समाज हैं इसमें, किसी का इकलौता नाम नहीं बोलने से होगा। आप देख रहे हैं इसमें, जो कि हम लोग मीडिया को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, संगठन को फॉलो कर रहे हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं डेली का जो चल रहा है इस बारे में लेकर, तो किसी संगठन का नाम ना लेके। और इसमें अब बोला जा रहा है कि पवन सिंह ने कुछ असभ्य अभद्र गाना गाया है यहाँ के कल्चर के लेकर, यहाँ के समाज को लेकर। तो एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि कलाकार का कोई जात नहीं होता है, कलाकार सबका होता है, वो चाहे किसी भाषा का हो। अगर इस तरीके से देखा जाए तो भारत में किसी कलाकार की सम्मान नहीं रह पाएगी। हर वर्ग के लोग, हर कलाकार, हर क्षेत्र के कलाकार, हर राज्य के कलाकार किसी न किसी राज्य के बारे में
कुछ ना कुछ असभ्य कभी ना कभी तो बोले हैं, कोई ना कोई सीन है उनका जो असभ्य है, कोई ना कोई डायलॉग है उनका असभ्य है। अगर इस तरीके से हम लोग त्रुटि निकालते रहें तो पता चलेगा कलाकार का काम करना है इस देश में मुश्किल हो जाएगा। तो कलाकार की जात नहीं होती, आप भी जानते, कोई गाने की अगर बात होगी तो लिखता कोई और है, कंपोज कोई और करता है, लिरिक्स कोई और देता है, अभिनेता कोई और होता है, अभिनेत्री कोई और होती है, गाता कोई और है। तो इसमें किसी कलाकार पे, एक सिंगल कलाकार पे दोष देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और अगर इससे किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं किसी संगठन को। लेकिन फिर कहता हूं एक बात, कलाकार की कोई जात नहीं होती है। उस तरीके से देखा जाएगा तो हमारे इस राज्य के भी कलाकार कहीं ना कहीं दूसरे राज्य के बारे में कुछ ना कुछ अपशब्द बोले ही हैं, कुछ ना कुछ वैसा सीन किए ही हुए हैं। तो लेकिन कलाकार के बारे में बोलना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। इसका लेकर प्रदर्शन करना और इसके लेकर एक समाज को कोई गलत संदेश देना वो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। उसको मैं तहे दिल से मैं कहूँगा कि आगे इस तरीके का विचार ना रखा जाए। यह बंगाल की संस्कृति है, हमारी जन्म भी यहीं हुई है, हमारी कर्म भी यहीं पर है और हम लोग सबका सम्मान करते हैं, खासकर हमारे जो बांग्ला भाषी हैं। और मैं आज बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि मैं अपने हिंदी भाषियों से क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे कि मेरे में कुछ कमी होगी जो मैं आज ये कार्यक्रम नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं उनसे कहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमें हमारे पिताजी को जो 44 साल बाद यहाँ विधायक बनकर आए हैं आप लोग के आशीर्वाद से, वो चाहे हिंदी भाषी हो चाहे बांग्ला भाषी हो, आगे भी एक ही बात रहेगी कि जिस तरीके से आशीर्वाद आपने बनाए रखा है, आप लोग अपने मन में ठेस ना पहुँचाएँ। कार्यक्रम होती रहेगी, लेकिन कार्यक्रम लेकर हम लोग किसी समाज के बारे में, अगर कोई संगठन के बारे में हम लोग इस तरीके की बात करेंगे तो ये उचित नहीं है। मैं सबसे अपील करूंगा कि शांति बनाए रखें और हिंदी भाषियों से खास करके कहूँगा, आज अपील करूंगा कि आप लोग भी आज के बाद इस विचार में, इस बारे में कहीं भी कोई सोशल मीडिया हो, कहीं भी कोई प्रेस वार्ता हो, कभी भी कहीं कोई न्यूज़ चैनल हो, किसी भी कमेंट्स में ना जाएं, किसी के साथ आप उलझन में ना रहें, किसी को आप जवाब ना दें। आप लोग दीदी के साथ थे, दीदी के साथ हैं, दीदी के साथ रहिए। हमारी नेत्री की नज़र आप लोगों पर है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा सबका वो बैठ कर अपने देखने में देख रही हैं। तो आप लोग जैसे हमको आशीर्वाद दे के रखें आज तक, हमारे सारे हिंदी भाषियों से हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि आप लोग इसको लेकर कोई विचार ना प्रकट करें। आज से कोई सोशल मीडिया पर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, ना किसी को आपको जवाब देना है। जिस तरीके शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग इस बंगाल में रह रहे हैं, मैं अपील करूंगा कि आगे भी इसी तरीके सौहार्द आप लोग बनाए रखें। आप लोग हमारी नेत्री माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिस तरीके से आशीर्वाद देते आए हैं, आगे भी उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। यही मेरा बोलना उचित है। मैं फिर एक बार कहता हूँ, कलाकार की कोई जात नहीं होती है, कलाकार कोई भी कार्यक्रम कर सकता है। होती है किसी को ठेस पहुँची है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे यही कहूँगा कि अगर आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हो तो हम चाहेंगे कि सारे समाज मिलकर एकजुट हो, एक जगह पे हो, एक जगह पे रहे और एक जगह पे रहकर कार्य करे और कार्यक्रम का अनुष्ठान हम लोग आयोजन करें। आयोजन करके हम लोग इस बारे में चर्चा करें ताकि आगे भी हमारे बंगाल में इस तरह की कोई अशांति ना फैले। इसका अपील मैं सभी से करता हूं और मैं ये बार बार कहूँगा कि आज के बाद इस बारे में भूल जाना चाहिए। फिर हम लोग कार्यक्रम आयोजन करेंगे जिसका हम लोग को दिशा निर्देश मिलेगा, जिसकी अनुमति मिलेगी, तो प्रशासन जिसका हम लोग को आदेश देगा, हम लोग ये कार्यक्रम करने के लिए सक्षम हैं। आगे हम लोग प्रयासरत रहेंगे कार्यक्रम करने के लिए। बांग्ला पक्ष क्या बोला, किसी संगठन ने क्या बोला, उसके बारे में हम चर्चा विशेष नहीं करते हैं। हम जानते हैं हमारी अपनी पार्टी के बारे में, अपनी नेत्री के बारे में। हमें हमारे पार्टी की तरफ से कोई विरोध नहीं मिला है। हमारे पार्टी के किसी नेता ने, हमारे नेत्री ने, हमारे कलकत्ता के किसी नेता ने, चूँकि सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पे यह कार्यक्रम हो रहा है उसके विधायक माननीय हमारे नरेंद्र हैं और उनके विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद भी उन्होंने इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। ना कि हमारी पार्टी की तरफ से, कलकत्ता की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन है। उन लोगों ने सहमति दी थी। लेकिन किसी एक संगठन का नाम आपने बताया, लगातार हमने भी देख रहा हूँ, प्रेस में भी देख रहा हूँ, मीडिया में भी देख रहा हूँ कि उनका विरोध लगातार जारी है और उनका विरोध करने का मुख्य उद्देश्य क्या है ये हमें समझ में नहीं आ रही है। इसको विस्तार से आप लोग कर सकते हैं पता, क्या जानकारी है। लेकिन उस संगठन को मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, मैं उनको जवाब देना चाह रहा हूँ कि आप संगठन करिए, आप बंगाल के हित में बात कर रहे हैं, आप बंगाल के हित में बात करिए। बंगाल की जनता आपके साथ है और बंगाल की जनता में हम भी हिंदी भाषियों का, हम भी बंगाली हैं। चूँकि हमारी जन्म भी यहीं पर है, हमारी कर्म भी यहीं पे है, तो हम भी एक बंगाली हैं। आप अन्यथा किसी ऐसे कारण में, किसी ऐसे प्रचार में, किसी ऐसी कोई संरचना में ना जाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर बांग्ला पक्ष नाम का संगठन का नाम ले रहे हैं,
तो आप देख लीजिए, ताकि इससे बंगाल का सौहार्द ना बिगड़े, बंगाल में भाईचारा ना बिगड़े, बंगाल में जो हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ हैं, इसमें कोई भेदभाव ना हो। आप किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, किसी जात को लेकर आप टिप्पणी ना करें। मेरा निवेदन है आपसे। आप अगर कहते हैं कि आपके कहने से ये कार्यक्रम रद्द हुआ, तो मैं इसे सरासरी ना मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम लोग प्रशासन से बात किए, प्रशासन का कहना है कि हम लोग उचित का व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इस कारण सुरक्षा की कोई त्रुटि हो जाए, कुछ घटना हो जाए, तो आप अगर कार्यक्रम स्थगित करके अगर उस जगह को अगर बदल कर आप कोई बड़े जगह पर करते हैं, तो हम लोग आपके साथ में हैं। और बांग्ला पक्ष क्या करती है नहीं करती है किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो किसी हमारे पार्टी के संगठन से कोई उनका लेना देना नहीं है, ना हमसे कोई लेना देना है। वो अपना कार्य करते हैं, अपने बंगाली के बारे में बात करते हैं, अपने बांग्ला भाषी के बारे में बात करते हैं। तो उनको ये भी बोला जाए कि जो यहाँ पैदा होकर बड़ा हुआ, जो 4 पुश्ते यहाँ रह रहे हैं, जिसके बाप दादा यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो भी बंगाली ही हैं। तो आप ये सोच के रखें कि विरोध अगर करने के लिए आप उतर रहे हैं, तो विरोध करने के लिए अन्य संगठन भी तत्पर है, अन्य संगठन भी उसके अंदर ताकत है विरोध करने का। लेकिन उस विरोध में हम लोग जाने वाले नहीं हैं। हम लोग को वो चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग एक शांतिपूर्ण इलाके में रह रहे हैं, शांतिपूर्ण जगह में रह रहे हैं। ये माटी काजी नजरुल की माटी, ये आप जानते हैं, ये माटी रविन्द्रनाथ टैगोर की माटी है। तो उनके राज्य में इस तरीके का बात करना मुझे उचित नहीं लग रहा है। ये चीज़ उनको भी समझना चाहिए। अगर वो समझ लेते बहुत बढ़िया बात है। और बाकी हमारे प्रशासन है जो कार्रवाई करेंगे, हम लोग उनके साथ हैं। बिहार यूपी में देखिए, जैसा कि आपने बढ़िया सवाल किया, इस सवाल के बारे में मुझे तो पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि आप ऐसा सवाल करिएगा। लेकिन चूँकि आप अच्छा सवाल किए, यहाँ कुछ बांग्ला भाषी भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, हिंदी भाषी भी है, पंजाबी भाषी भी सामने दिखाई दे रहे हैं। सारे लोग यहाँ कार्य तो कर रहे हैं। यहाँ तो कोई जात बोल के नहीं, यहाँ मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, देखिए बंगाली भी है, पंजाबी भी दिखाई दे रहा है आपके सामने। और जहाँ तक आपका नॉलेज होगा, आपकी जहाँ तक बुद्धि होगी, जहाँ तक आपकी जानकारी होगी, और जहाँ तक हमारी जानकारी है, क्योंकि हम लोग भी उस राज्य से जुड़े हुए, पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं, हम यहाँ के हैं लड़के, लेकिन हमारे जो पूर्वज है वो बिहार यूपी से ही हैं। तो हम लोग बचपन से ही भी देखते आ रहे हैं, और बचपन से नहीं, उससे हमारे बाप दादा के समय से देखते आ रहे हैं कि हमारे जो 90% जिसको बोलते हैं कलाकार, जो हीरोइन बोलते हैं, अदाकारा, एक्ट्रेस, यूपी में, बिहार में भोजीवुड जिसको बोलते हैं, उसमें बंगाली हैं 90%। उसके बावजूद आप देखेंगे कि जितने हमारे ऑर्केस्ट्रा टीम है वहाँ पे, जितने हमारे रंगमंच हैं, जितनी ऑर्केस्ट्रा टीम और रंगमंच में जितने कलाकार कार्य करने वाले हैं, उसमें 90% बंगाल के हैं। आप इसको बाई डाटा निकाल सकते हैं, बाई आप पेपर निकाल सकते हैं, बाई आप कागज़ निकाल सकते हैं कि 90% वहाँ कार्य करने वाली लड़कियाँ जो हैं वो हमारे बंगाल की हैं। 90% जो हीरोइन है उस इंडस्ट्री में वो बंगाल की है। डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर से लेकर आप खोजिएगा बाई डाटा, तो आपको सब दिखाई देगा कितने बंगाली लोग वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक, हम अभी रिकॉर्ड खोल के बोल देंगे, अभी तक आज तक आपको देख लीजिए, आज ये 26 तारीख है, समय हो रहा है 1 बजे, कोई भी हमें आप प्रमाण कर दीजिए कि हमारे राज्य हो, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, किसी के भी द्वारा, किसी संगठन के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा कहीं वो विरोध आज तक झेल पाए हैं? जो हमारे यहाँ बंगाली, जो हमारे कलाकार वहाँ कार्य कर रहे हैं, जो हीरोइन हो, हीरो हो, जो वहाँ अदाकारा हो, जो नाच करती हो, जो डांसर हो जिसे बोलते हैं, सारे 90% है, अगर आप डाटा से पता करिएगा। लेकिन आज तक कोई बोल सकता है किसी संगठन ने कहीं जाति लेकर, व्यक्ति विशेष लेकर उन पर टिप्पणी की हो, आज तक उनको कार्य करने में कहीं बाधा दिया हो, आज तक कहीं प्रताड़ित किया हो, आप कहीं नहीं दिखा सकते हैं। जबकि सारे बंगाली भाषी वहाँ काम कर रहे हैं आराम से। तो वहाँ के राज्य के लोग इस चीज़ को समझते हैं कि कलाकार का कोई जात नहीं होता है, और सबका पेट में भूख लगता है, अनाज की ज़रूरत सबको पड़ती है। वो कार्य करते हैं वहाँ पर, उनको अनाज मिलती है, उनको रोज़गार मिल रहा है। आप पता करिए कि किसी को भी तकलीफ़ है क्या वहाँ पे काम करने से। तो मैं वहाँ के लोगों से भी अपील करूँगा, चूँकि ये मीडिया बंधु हैं, ये सारे जगह से आप लोग जुड़े हुए हैं, यूपी बिहार से भी, मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि ये आज जो मैं घोषणा कर रहा हूँ एक हिंदी भाषी होने के नाते, कि आप लोग इस तरह की अशांति वहाँ भी ना करने की कोशिश करें। हमारे यूपी बिहार में भी जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग की रोजी रोटी चल रही है, उनको आप शांतिपूर्ण करने दें। मैं चाहूँगा कि मैं इस तरीके का कोई कंप्लेन ना सुनूँ, कोई घटना ना सुनूँ। मैं हाथ जोड़कर अपने वहाँ के लोगों से अपील करता हूँ
कि जो लोग हमारे बांग्ला भाषी वहाँ कार्य कर रहे हैं यूपी बिहार में, उनको कार्य करने दिया जाए, वो कार्य करें, आराम से करें, जिस तरीके से आज से हमारे बाप दादाओं के समय से करते आ रहे हैं। किसी को ये ना बोलकर कार्य में रोका जाए कि आप बंगाली हैं। उनको जो उचित सम्मान यहाँ मिलता है वो सम्मान उनको वहाँ मिले और वो अपना कार्य करें। ये मुझे वहाँ की जनता से अपील है। और आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैकवार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062। ਆਪ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਦੋ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ, ਆਵਾਜ਼ ਹੱਕ ਦੀ।